नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की भी कभी हार नहीं होती। तो एक्चुअली दिस इज अ पार्ट 2 of the same video. Okay, so let's get started and get ready with your notebook and pen. Students, let's start with the question number 36. This is actually a first question of the everyday mathematics section, right? Now question is, the population of a town is 2,075,000, okay, out of which 40% are females, okay. It means 40% of 2,075,000 are males, okay. परसेंटेज में गिवन है, नंबर्स में हम काउंट कर लेंगे, तो इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? Now these 2 zeros will cancel. Now 40, okay, तो 2 zeros तो हमारे पास आएंगे ही, तो 275 into 4, तो 4 5s are 20, 0 2 7 4 28, 0 30, 2 4s are 8 9, 2 4s are 8, 8 plus 3 11, right? तो ये हो जाएगा 1 1 0 0, okay, means this much, okay. These are the number of what? Females. Percentage में given था. Now we have found it is in females. Next is, okay, next is if 25% of males move to big cities, okay. अब हमारे पास females हैं, टोटल पता है ना, टोटल कितना है? 2,75,000 is equal to male plus female. Now 2,75,000 we know male we can find, and females are 1, how many zeros? 1 2 3 4, 1 2 3 4, like this much, okay, means 1,10,000. So 2,75,000 minus how much? 1,10,000. तो यहाँ से हमें क्या मिल सकता है? मेल का नंबर मिल सकता है, राइट? तो कितना हो गया? 0 0 0 5 6 and 1. So means मेल आ गया 1,65,000 are males. Let me erase this, ठीक है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? these are the females now, and these are the males, and now 25% of the males means ये इतना नंबर है मेल्स का, इसका 25%, ठीक है, 25% ऑफ व्हाट? 165,000. अभी नंबर निकाल लेंगे तो 25 by 100 165,000, right? Now these 2 0 will cancel, and 165 into 25, 5 5 25, 5 2 30 32 8, then 0 6 to 12 13, 2 1s are 2 and 3. So how much? 5 2 1 4. So 4 1 2 5 and how much? 0 1 0, ठीक है. तो these are the number of males, ठीक है, जो कहाँ पे गए हैं? Males move to, yes, move to big cities, right? जो big cities में ट्रांसफर किया है. Then how many males are left? हाँ, तो टोटल इतना है, ये मूव टू बिग सिटीज हैं, तो क्या होगा? 1,65,000 माइनस हाउ मच? 41,250. नाउ लेट्स से 0 10 minus 5 5. ऑप्शंस भी देखते रहते. 50 वाला ऑप्शन कहाँ पे? हाँ, सी में दिख रहा है, तो ए बी और डी तो नहीं है, सी ही होना चाहिए. 10 minus 5, then 9 minus 2 7, yes, then here 5 minus 4 5, 4 हो जाएगा. 4 minus 1 3, 6 minus 4 2 1, तो 1 2 3 7 5 0. इट मीन्स कितना नंबर है? Yes, 1,23,750. So these, it means C will be your correct answer, right? Okay, now question number 37. In my account book, I write positive numbers with profit and negative number for losses and that I make in my business. Okay, following are the entries. ठीक है, अगर हम सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट के नंबर्स प्लस से डिनोटेड है, मीन्स 21, then 11, then 17, then 25. ओके, और लॉस के कितने हैं जो नेगेटिव से? -19, -20, -13, राइट? तो 1 2 3 4, 4 नंबर हैं यहाँ पे प्रॉफिट के, और 3 नंबर 1 2 और 3 नेगेटिव के, ठीक है. प्रॉफिट को ऐड कर लो तो 21 11 17 एंड 25.
तो 7 5 12 13 14 4 1 2 3 4 5 2 3 4 5 5 और 2 7, तो 74 है आपका प्रॉफिट। माइनस इनको करोगे ऐड, इनको भी ऐड कर लेते हैं 19 20 एंड 13, तो 9 3 12 2 2 3 4 5, तो 52 राइट। अब 4 माइनस 2 2 होते हैं, तो देख लेते हैं 4 वाला, तो सी और डी ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। और 7 माइनस 2 तो 22, तो बी आपका क्या है करेक्ट आंसर, राइट। Okay, now question number 38. Question number 38 is Maria noted the age of player in state cricket team. The ages, okay, this much, these are the ages. What is the mean? Okay, then students, you know that, okay, mean is equal to what? Yes, sum of observations upon number of observations, right? अब यहाँ पे ऑलरेडी हमें कितना नंबर दे रखा है, नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 क्या है तो मीन्स नीचे आ जाएगा 11। सम करना है तो कैसे करोगे, 24 प्लस 37 प्लस 28 प्लस 25 प्लस 30 and plus 21 plus 24 plus 22 plus 20 again 22, 2 times 22, please be careful, okay, while 28 and plus 25, ठीक है। सबको प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 24 37 28 25, ठीक है। इन सबको प्लस करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 286, 286 बाय 11, 11 के टेबल से डिवाइड करोगे, 11 2 जा 22, ठीक है, 11 2 जा 22, 66 आ जाएगा तो 26, तो मींस 26 इयर्स है सबकी एक एवरेज, तो इट मींस आपका डी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 39 है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके, तो 3:200 एंड इफ देयर आर 36 टीचर, ओके, इसको प्रोपोर्शन के साइन में लिखते हैं, यहाँ पे 3:200 है, proportion क्या है, if there are 36 teacher, okay, 36 and then how many student, तो how many student, let be x, then what is the formula, yes, product of extreme is equal to product of, yes, mean, right, so these are the mean and these are the extremes. Now 3 into x is equal to 200 into 36, then x is equal to 200 into 36 by 3, then this will be 12 and 12 to the 24, 2400, so x is equal to 24. Let's check the option, yes, C will be your correct answer, right. Question number 40, a group of 15 children shared a box of candies, okay, after taking 9 candies each, ठीक है, there were 7 candies left, तो हर एक बच्चे को, ठीक है, 15 चिल्ड्रन है, 15 चिल्ड्रन को कितनी मिली है, हर एक बच्चे को 19, तो 15 9 5 9 45, 5 and 4 and 135, राइट, 135 कैंडीज हैं अभी मिली है। Now according to question there were 7 candies left, और सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 7 कैंडीज लेफ्ट भी हैं, इट मीन्स प्लस 7 कर देंगे, तो 7 + 5 12 1 4 and 142 कैंडीज, तो हाउ मेनी कैंडीज वर देयर एट फर्स्ट बॉक्स में, कितनी कैंडीज थी बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, तो यहाँ पे कितनी थी 142, ऑप्शन है ए, ठीक है, योर आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 41, Rashmi studies 5/6 hour on Monday, 3/4 on Tuesday, 1/2 on Wednesday. How much total time? Total time, then yes, you need to add to 5/6, 3/4 and 1/2, ठीक है, 6 और 4 2 का एलसीएम निकालोगे तो 2 के टेबल से 2 3 2 2 1, then 2 3 1 1 and here 3, 2 2 4 12, ठीक है, 12 6 2 10 plus 3 9 plus 2 6, तो 10 9 19 plus 6, 19 plus 6 9 plus 6 15 and 25/12, right, sorry 25/12. now these are the you have calculated it in hours, ठीक है। अगर आप ऑप्शन में देखते हो तो ऑप्शन में सारे आंसर मिनट्स में, ठीक है। अब स्टूडेंट्स प्लीज लिसन हियर, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहते हैं, आर को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है,
मीन्स ये क्या है बिग और ये क्या है स्मॉल, आवर्स क्या है बिग और स्मॉल मिनट्स क्या है स्मॉल। बिग टू स्मॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई, वेरी गुड। और इसको हम याद रख सकते हैं भसम से, किससे भसम से, BSM, ठीक है, बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई किससे, लेकिन अब इनके रिलेशन क्या है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, इट मीन 60 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 25/12 इंटू 60, तो 12 5 60, देन 5 5 25, 5 2 and 125, ठीक है, तो 125 वॉट मिनट्स, तो ऑप्शन क्या है बी, तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। Okay, now question number 42. Priya bought 5 pairs of shoes, okay, and 3 pairs of socks. If a pair, ठीक है, अगर एक पेयर का कॉस्ट कितना है 215.25 और इसको कैसे कर दोगे 5 से इंटू कर दोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा शूज का, राइट। तो कैसे करोगे 2525 डिवाइडेड बाय रिमूव करोगे डेसिमल 100 इंटू 5, तो 2552521 और इसको 5 से करोगे 5 5 25 5 2 2 5 10 12 then 25 26 then 7 and 10, तो आंसर इज 107625, डेसिमल कहाँ आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया टोटल कॉस्ट किसका 5 पेयर ऑफ शूज का, ठीक है। सिमिलरली अभी हमें सॉक्स का भी दे रखा है, तो ये हो गया 5 पेयर ऑफ शूज, 3 पेयर्स ऑफ सॉक्स, तो एक पेयर का कितना है 52 रुपीज, ठीक है, 52.5 एक्चुअली, एंड इंटू 3 करोगे तो 52 5 इंटू 3 3 5 15 6 7 एंड 50, तो कितना हो गया 5 7 और डेसिमल कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम करेंगे ऐड बिकॉज पूछा गया है टोटल, तो 1076.25 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए बिकॉज लाइक डेसिमल्स के, तो 5 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 5 and 1 then 5 and 7, तो 0.75 देखो ऑप्शन में कहाँ कहाँ है, ए में तो नहीं है, बी में भी नहीं, नन ऑफ दीज नहीं है, और ये वाला सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चेक कर ले 6 5 13 राइट, 7 5 12 13 and 2 and 1 2 3 3.75, yes C will be your correct answer, right. Question number 43. 280 folders are distributed among 50 employees, okay, of an office such that each male gets 5 folder and each female gets 8 folder. How many males are there in office? ठीक है, जो नहीं पता है let, okay, let the male be x. अगर मेल x है, टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं 50, तो फीमेल कितने हो जाएगा, फीमेल भी 50 माइनस x, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल उनको 280 फोल्डर्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ओके 280, उसमें से बोला गया 5 फोल्डर्स किसको जा रहे हैं, 5 फोल्डर्स मेल गेट 5 फोल्डर्स, तो मीन्स 5 इंटू एक्स प्लस एंड फीमेल मीन्स 50 माइनस एक्स, इनको कितना जा रहा है 8 फोल्डर्स, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बन गया, सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी x की, मेल पता चल जाएगा, यस वही तो निकालना है, तो 8 5 40 0 8 5 40 माइनस 8x इज इक्वल टू 280, देन 5x माइनस 8x कितना हो जाएगा माइनस 3x और 280 माइनस 400 और माइनस 3x इज इक्वल टू 400 माइनस 280 0 10 माइनस 8 2 देन 3 तो 120, राइट, वो भी नेगेटिव में, ये कैंसिल, x इज इक्वल टू 120/3, तो ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है, x इज इक्वल टू 40, इट मीन्स अगर 40 मेल्स हैं, ठीक है, 40 कितने मेल्स हो गया और फिर फीमेल्स 40 तो निकालना है हमें, वैसे तो फीमेल्स भी निकाल सकते हो है ना, 50 माइनस 40 करोगे तो 10 मेल्स हो जाएंगे, देन फीमेल्स हो जाएंगे, तो 40 मेल्स है, तो बी ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट आंसर, राइट। Okay, students, now we have question number 44. The area of circular field is 6.16 hectares. Find the cost of fencing it at the rate of 7.50 per meter. Okay, तो यहाँ पे तो यूनिट्स डिफरेंट है, ये हेक्टर्स है और ये मीटर है, इट मीन्स आपको 6.16 हेक्टर को किसमें चेंज करना पड़ेगा, यस मीटर में, तो ये हो गया बिग टू स्मॉल, अगर बिग टू स्मॉल है तो क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई, ऑलरेडी यहाँ पे हमें रिलेशन भी दे रखा है 10,000 का, इट मीन 616, इसका डेसिमल रिमूव करोगे 100 आ जाएगा, इसको कैसे इंटू करोगे 10,000 से, राइट, तो ये 2 और 2 0 कैंसिल, तो कितना हो गया 616,100 मीटर स्क्वायर, ये आपका अब आ गया एरिया। एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 61600, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 61600 इंटू 7/22,
जो कि रेसिप्रोकल करके आ जाएगा। तो आर स्क्वायर यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 19600। कैलकुलेशन पार्ट आप खुद करो, ठीक है, ताकि आपका भी स्पीड अप बिल्ड होगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर इसको कैसे लिख सकते हो, 140 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, है ना, वो 19600 ही आएगा। कुछ स्क्वायर्स आप लर्न करो, लाइक जैसे 12 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, एटलीस्ट 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स आपको पक्का आने चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल, तो r इज इक्वल टू 140 मीटर। अब ये आ चुका है, तो क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मीन्स बाउंड्री करनी है। बाउंड्री मीन्स सर्कल की फॉर्म में बोले तो सर्कमफ्रेंस, ठीक है, किसका, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मीन्स 2 पाई आर। 2 पाई आर तो 2 22/7। अब आर कितना है आपका 140, ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना होगा 880 मीटर, ये होगा। अब पर मीटर के हिसाब से भी उन्होंने हमें कॉस्ट दे रखी है, तो 880 इंटू 7.50 से मल्टीप्लाई करोगे, जीरो नहीं भी करोगे तो चलेगा। 880, इसका डेसिमल रिमूव कर दो, डेसिमल रिमूव किया, 0 0 कैंसिल, 88 इंटू 75 करो, 8 5 से 40, 0 4, तो 8 5 से 40 44, देन 7 8 से 56 6 5 एंड 7 8 56 61 0 0 1 4 5 6, तो देखो 6600 यस, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, राइट। Okay students, now we have question number 45. Mohit bought a car for a certain sum, ठीक है, certain sum like the x. He spent 20% of the cost of the, ये total cost है, ठीक है, ये क्या है आपके पास total cost। इसका जो 25 है वो उसने किस पे रिपेयर स्पेंड किया है, अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर, वो क्या हो जाएगा 20% ऑफ x मीन्स 20/100 इंटू एक्स, कैंसिल, और बन जाएगा ये x/5, ठीक है, ये आपका बन गया x/5। नेक्स्ट दिस इट एंड सोल्ड द कार फॉर प्रॉफिट ऑफ 6000। उसके बाद रिपेयर करवाने के बाद वो क्या करता है, कार को बेच देता है, ठीक है। तो मीन्स कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस बनेगा वो क्या बनेगा, एक तो टोटल कॉस्ट, ठीक है, x प्लस रिपेयर पे भी स्पेंड किया तो x/5, तो ये कितना हो गया 5 और 5x प्लस x, तो बन गया 6x/5, तो ये बन गया आपके पास CP, ठीक है, ये था रिपेयर वाला, ये था आपका CP। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि अभी प्रॉफिट उसको बेचने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद उसको प्रॉफिट कितने का हुआ 6000। इट मीन्स अगर हम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएं यहाँ पे, क्योंकि हमें प्रॉफिट भी पता है CP भी पता है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, राइट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है 10, ऑलरेडी दे रखा है, प्रॉफिट 6000 का है, CP कितना है 6x/5 और इंटू 100। यहां से हम करेंगे इसको सॉल्व, तो ये और ये जीरो तो कैंसिल हो सकता है, तो 6x/5 इज इक्वल टू 6000 मीन्स 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, 3 और 1 ये वाला भी जीरो, और x इज इक्वल टू 6 4 zeros मीन 60,000 इंटू 5/6। यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 इंटू 5, तो x इज इक्वल टू 5, हाउ मेनी zeros, ओके लेट मी, x इज इक्वल टू 1 2 3 4, और ये हो गया आपका टोटल, मीन्स उसको गाड़ी, ठीक है, उसने गाड़ी कितने में खरीदी 50,000। अब रिपेयर का उन्होंने बताया हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन रिपेयर, तो रिपेयर का क्या था x/5 कि उसका 5th पार्ट उसने रिपेयर पे खर्च किया, तो रिपेयर वाला अमाउंट क्या आएगा, इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो रिपेयर अमाउंट इज इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाय 5, इट मीन्स 10,000 उसने किस पे किया है, रिपेयर में। आंसर क्या है आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। Okay student, this is the question number 46, okay, and it's from a achievers section, and in this section every question contain how many marks, 3 marks, okay, so be careful, but the approach you need to follow here कि सबसे पहले statement 1 है, statement 2 है, थोड़े से lengthy questions होंगे, लेकिन आपने क्या करना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, जिसकी कैलकुलेशन आसान होगी, मीन्स कम होगी, वही पार्ट की हेल्प से आपको सही ऑप्शन का करेक्ट मीन्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट 1 अगर मैं रीड करती हूँ तो क्या है, फ्रॉम अ बॉल ऑफ स्ट्रिंग रोहित कट 9.25 मीटर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड सारा कट लेंथ ऑफ 3.6 मीटर लॉन्गर देन रोहित, ओके।
if the remaining length of the string in the ball was twice the total length cut by the Rohit and Saransh, then the original length of the string in the ball before it was 7.82. देखो रीड करने में क्वेश्चन है आसान है, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा सा क्या लेंथी जा रहा है। अब हम स्टेटमेंट 2 भी रीड करेंगे। Mr. Sharma painted 2/3 of the kitchen and son painted 1/2. The neighbor helped 1/4. So the fraction of the kitchen that Mr. Sharma and his son painted more than their neighbor is 1/2. ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे भी कैलकुलेशन है, लेकिन स्टेटमेंट 2 से ट्राई करते हैं। ठीक है, मिस्टर शर्मा कितना है 2/3 और सन ने कितना किया है 1/12। ठीक है, 3 और 12 का एलसीएम लोगे 12 आ जाएगा, तो 4 4 2 8 प्लस 1 तो 9/12। 9/12 होगा। नेबर का कितना है 1/4। नेबर का कितना पार्ट है, नेबर का जो आपका ऑप्शन है मींस उनका कंट्रीब्यूशन है वो क्या है 1/4। नाउ दे सेड कि कितना ज्यादा किया है इज मोर देन हाफ, मींस अगर आप 9/12 माइनस 1/4 करते हो तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 1/2। तो 12 और 4 का एलसीएम अगेन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 9 माइनस 4 तो 9 माइनस 3 कितना होता है 6/12। 6/12 मींस 1/2। यस, तो ऑप्शन जो आपका ये है 2 है वो क्या है करेक्ट है। अगर ऑप्शन 2 है तो ए बी सी में, तो ऑप्शन 2 कहाँ पे करेक्ट है, ट्रू, यस ट्रू है। 2 यहाँ बी तो नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता, मीन्स ए और डी में से आपका आंसर एक हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली अब हम फाइंड करेंगे किसके लिए, स्टेटमेंट 1 के लिए, क्योंकि अभी भी ऑप्शन हमारा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 क्या है वो वहां पे बोथ ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट ट्रू है कि अभी फॉल्स है। राइट, तो लेट्स चेक। अभी हम इसमें देखें तो फ्रॉम अ बॉल रोहित कट 9.25। ठीक है, रोहित का कितना 9.25, सारांश कट लेंथ ऑफ 3.6 लॉन्गर, तो मींस 9.25 3.6 लॉन्गर, तो 5 8 और 12 ये किसका होगा सारांश का। राइट, और ये कितना है किसका है रोहित का। राइट, नाउ इफ द रिमेनिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अब जो बचा है was twice the total length cut by रोहित एंड सारांश, मीन्स दोनों को ऐड करना पड़ेगा 9.25 और 12.85, तो ये कितना हो गया 250 11.13 93 12 to 1, तो 22.1। इसका भी क्या डबल, इट मीन्स इंटू 2, तो 22 1 इंटू 2 तो 244, मीन्स ये कितना होगा 44 पॉइंट यहाँ पे इतना। ये था आपका देन द ओरिजिनल लेंथ वाज स्ट्रिंग इन द बॉल was twice the total length by then the original length of the this no, ये तो 44.2 आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे कितना है 78.2, इट मीन्स हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो फॉल्स है। वो किस में है, यस डी में। ठीक है, तो ए ऑप्शन भी नहीं है, तो डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स दोनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद क्या करो, जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान है उसकी हेल्प से ऑप्शन को सेलेक्ट करने की कोशिश करो। Now question number 47 is find the table and select the correct option। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये ऑप्शन है, यहाँ पे आपको किसके साथ मैच करना है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, लाइंस ऑफ सिमेट्री मीन्स अगर आप उसको कट कर रहे हो लाइक ऐसे ऐसे कट कर रहे हो तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आना चाहिए। लेकिन अगर आप जैसे यहाँ पे देखो तो अगर आप इसको इस तरीके से कट कर रहे हो, ठीक है, तो ये वाला पार्ट इसके पार्ट के इक्वल होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होनी चाहिए 0। ठीक है, तो मीन्स P क्या होना चाहिए 0। तो 0 में देखो तो D और A कैंसिल हो गया, मीन्स B और C में चेक करेंगे, यहाँ पे होना चाहिए 0। अब डॉलर साइन है, यहाँ पे ऑलरेडी लाइन्स ऑफ सिमेट्री 0 है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मीन्स जैसे अगर ये वाला है, ठीक है, अगर आप इसको रोटेट करते हो, ठीक है, ये ऐसा है, रोटेट करते हो तो बिल्कुल क्या होना चाहिए, यही वाला आपको फिगर मिलना चाहिए। मीन्स अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हो, ठीक है, इस तरीके से ऐसे ऐसे, तो देखो बिल्कुल सेम है। इट मीन्स आपको किस पे करना पड़ रहा है, ये कौन से एंगल पे 180 डिग्री, तो 360 बाय 180 पे ही आपको दोबारा से ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मिलता है। तो 0 कितना हो गया 2, तो 2 आना चाहिए, तो Q की वैल्यू 2 होनी चाहिए जो अभी भी चल रही है, तो B और C। ठीक है, मीन्स यहाँ पे होना चाहिए 2। अब ये वाला है, ठीक है, इसको यहाँ पे 1 डॉट है, यहाँ पे 1 डॉट है, यहाँ पे,
कट करो तो तब भी सेम है, यहाँ पे कट करो तब भी सेम है, और यहाँ से कट करो तो ये भी सेम है, राइट। इट मीन्स 3 आना चाहिए, आर 3 होना चाहिए, आर बिल्कुल 3 है। एस, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अगर आप इस ट्राइंगल को क्या करते हो, रोटेट करते हो, ठीक है। अगर रोटेट करते हो, ये तो अभी आपका 0 डिग्री पे है, ठीक है। ऐसे रोटेट करोगे, इधर को जाओगे 120 को, तो कैसे होगा, यस फिर से सेम ही आएगा, ठीक है। 60 पहले 60 पे करते हैं, फिर 120 पे, फिर 180 पे, इस तरीके से। तो 60 वाला डबल में करेंगे, जब 60 प्लस 60 करेंगे तो क्या होगा, 360 बाय 120, राइट। 120 पे ये पूरा एंगल फिर से वैसा ही दिखेगा, तो कितना हो गया 3। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितना होना चाहिए, 3। तो एस इज इक्वल टू 3। इट मीन्स सी ऑप्शन क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। Okay, now students we have question number 48. Solve the following and select the correct option. ठीक है, 2 options दे रखे हैं. A cow is tethered in the center of a circular field. एक ऐसा कुछ circular field है, ठीक है. Having a diameter 112, ठीक है, इस तरीके से 112 है. With a 56 meter long rope. उसको किससे बांधा गया है? Means center से ही बांध है ना, center से यहाँ पे, और ये 56 है. It means जो हमारा radius हो रहा है, आप 112 डिवाइड बाय 2 करोगे तो वो भी 56 है, तो 56 सेंटीमीटर आपका radius है. If the cow grazes 250 square per meter per day, अगर एक दिन में 250 स्क्वायर मीटर स्क्वायर वो ग्रेज करती है, तो पूरे टाइम में हाउ मच टाइम, कितने टाइम वो लेगी, इट मीन्स हमें एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया आपको सर्कुलर फील्ड का अगर एरिया निकालोगे तो वो क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई मीन्स 22/7, आर कितना होगा 56 इंटू 56, तो 7 8 56, 22 इंटू 8, 8 2 8 16, 6 1 एंड 176 इंटू 56, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा, 176 इंटू 56, 6 6 36, 6 3 7 6 42, 42 प्लस 3 45, 10 7 6 30 0 3 7 5 7 35 38 एंड अगेन 8 है, तो 6 5 8 9, तो हो गया आपके पास 9856 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना एरिया वो क्या करती है, ये उतना वो टोटल सर्कुलर का है। आपको एक दिन का भी दे रखा है, अब आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 250 कर दोगे, तो 250 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 39 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा। अब आप ऑप्शंस में देखो तो 39 है, तो 39 तो कहीं पे भी नहीं है, ए में भी नहीं है। 40 है तो 39 को अप्रोक्सीमेट करोगे, मीन्स उसको राउंड ऑफ करोगे तो 40 है, तो बी ऑप्शन आपका क्या है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, बी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। लेकिन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस में एग्जाम में तो आप यहाँ तक भी छोड़ दोगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी सॉल्व कर रहे हैं तो हम बी पार्ट भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ उसमें क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल whose perimeter is, मीन्स पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होगा सेमी सर्कल का, ऐसे इस तरीके से होगा, है ना, ये वाला। तो ये पेरीमीटर मीन्स ये वाला बाहर का पार्ट, और ये दो रेडियस भी इसमें से सिलेक्ट होंगे, राइट। अब एरिया जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2πr, अगर सेमी सर्कल रखेंगे तो पाई आर प्लस 2r, ये वाले 2r, ठीक है। अब यहाँ पे हमें r की वैल्यू चाहिए था, तो पेरीमीटर दे रखा है यहाँ से 324, तो 22/7 r प्लस 2r इज इक्वल टू 324, r की वैल्यू निकाल लो, तो 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 324, r 7 एलसीएम 22 प्लस 14 और 324 एंड r इज इक्वल टू यहाँ से 6 एंड 36/7 324, राइट। तो r इज इक्वल टू 324 इंटू 7/36। अब यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो r इज इक्वल टू, यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा 336 और 3 और 2 6 6 प्लस 4 10, तो 2 के टेबल से 2 18 1 एंड 2 6 12 और 2, देन 2 9 2 8 81 और 9 9 81, तो 9 7 63 आ गया, ठीक है। r इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 63, ठीक है। अभी इसको हम एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर देते हैं, और अभी हम क्या निकालेंगे, यस हमें निकालना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, राइट। तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जब आप 2 करोगे तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो पाई की वैल्यू 22/7
एक 2 तो है ही नीचे, और आर स्क्वायर, आर कितना निकाला 63, तो 63 इंटू 63, तो ये 7 9 सा, यहाँ पे 11 सा, तो 99 इंटू 63 हो जाएगा। तो आप इसको इंटू करो, 99 इंटू 63, 6 9 3 9 27, 7 आना चाहिए। तो 7 कौन से ऑप्शन में, डी तो नहीं था, इट मीन्स यही है, तो बी ऑप्शन है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 6237, तो बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। Okay, question number 49. Read the given statement carefully and state T for true and F for false. ठीक है, ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे सॉल्व करना है, यहाँ पे इक्वेशन बनाना है, और ये ऑलरेडी इक्वेशन दे रखा है, तो थर्ड से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, मुझे थर्ड थोड़ा सा इजी लग रहा है, तो यही अप्रोच आप लोगों ने भी फॉलो करनी है कि इजी ऑप्शन को, जहाँ पे कैलकुलेशंस कम है, उसी की हेल्प से आपको सही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द स्टेटमेंट, सम ऑफ 8 टाइम्स ऑफ अ नंबर x, तो मीन्स 8x होना चाहिए, जो कि 8x से नहीं है। ठीक है, एंड 15, तो मीन्स ऐसा होना चाहिए था 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 55, जो कि नहीं है। इट मीन्स थर्ड क्या होना चाहिए, फॉल्स। थर्ड फॉल्स फॉल्स का है, तो मीन्स ए ऑप्शन भी नहीं है, बी नहीं है, सी और डी में से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं फर्स्ट वाला पार्ट। तो फर्स्ट वाला क्या है, 2 माइनस 3y ब्रैकेट प्लस 4y अपॉन 9y minus 8y plus 7 is equal to 4/5, then y is equal to minus 32। ठीक है, तो पहले तो इसको रिड्यूस कर लेते हैं, तो 2 minus 3y plus 4y upon 9y minus 8y plus 7 is equal to 4/5, तो 2 minus यहाँ पे प्लस हो जाएगा y है ना, और 9y मीन्स यहाँ पे भी y plus 7 is equal to 4/5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 plus 10y is equal to 4y plus 28, then 10 minus 28 4y minus 10y, ये इसको करोगे तो 18 माइनस, और यहाँ पे माइनस 6y, ये कैंसिल, तो 18/6 is equal to y, तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए माइनस 32, जो कि नहीं है ना, 18 6 3 से 18 होता है, y is equal to 3 आ रहा है, तो मीन्स ये भी क्या फॉल्स होना चाहिए, मीन्स डी ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही आंसर है, राइट। लेकिन अभी हम करेंगे पार्ट 2 भी सॉल्व, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट जो है उसमें क्या है, श्रुति's फादर एज इज 10 ईयर मोर ओके देन 5 टाइम्स श्रुति's एज। तो श्रुति अगर हम एक्सलेट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगी, उसकी फादर एज 10 ईयर मोर मीन्स 5 टाइम्स ऑफ, तो 10x, एंड इफ श्रुति's एज इज 40, श्रुति's फादर एज इज 40 इज इक्वल टू 40, तो इस तरीके का कोई इक्वेशन बनना चाहिए, राइट। 10 प्लस 5x इक्वल टू 40, तो ऐसा बन रहा है। हाँ, यहाँ पे उन्होंने y लेट किया, हाँ y है तो आप y ही लेट करोगे, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी y दे रखा है, अगर कुछ नहीं है तो आप कुछ भी लेट कर सकते हो। तो यस, तो ये भी क्या है, ट्रू है, इट मीन्स यस ट्रू है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, राइट। Okay, now we have 50th question. Fill in the blanks, select the correct option. In the given figure, two parallel lines L and M are cut by true transversal. ठीक है, ये एक N ट्रांसवर्सल है और आपके पास ये एक P ट्रांसवर्सल है और ये L और M पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, अगर सिर्फ आप L पैरेलल टू M देखो और कट बाय ट्रांसवर्सल P देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले कट बाय ट्रांसवर्सल P देखते हैं, तो 66 और एंगल X, एक आपको पास एंगल X है और ये आपके पास एंगल Y है। ठीक है, तो 66 प्लस एंगल X कितना हो जाएगा, 180 होगा। यस, रीजन इज को-इंटीरियर। आप अगर नहीं देखा है तो प्लीज चेक द वीडियो, मेरा ट्रांसवर्सल वीडियोस में मैंने ट्रांसवर्सल वाला वीडियो में बताया कि ट्रांसवर्सल लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 66, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4 7 माइनस 6 1 और 114 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली अब हम देखेंगे L पैरेलल टू M ही देखेंगे, लेकिन N ट्रांसवर्सल से देखेंगे, तो 48 प्लस y, तो y प्लस 48 इज इक्वल टू 180, सेम रीजन, को-इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इफ एनी कट बाय ट्रांसवर्सल, एनी पैरेलल लाइन से कट बाय ट्रांसवर्सल, तो उनके को-इंटीरियर एंगल का सम 180 इक्वल होता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 48, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 8 2, देन 7 माइनस 4 3 एंड 132, तो ये हो गया आपके पास 1। आपको क्या निकालना है, x प्लस y मीन्स 114 और 132 को ऐड कर दोगे, 6 4 और 246। अब 246 कहाँ पे आ रहा है, C, तो C ऑप्शन आपका होगा करेक्ट आंसर, राइट। लेकिन अभी हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व, राइट। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट में क्या है, इफ द मेजर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:7, ओके, तो उनका सम क्या होगा, एक 3x हो जाएगा रेशियो में, तो दूसरा 7x हो जाएगा, तो 3x प्लस 7x सप्लीमेंट्री है, तो 180 सम होना चाहिए, 10x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 18, राइट।
देन द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स, सो मीन्स 3 into 18 करोगे और फिर 7 into 18 करोगे, ठीक है। 8 3 24, 4 2 54, 7 into 56, 6 and 5 and 126, राइट। तो 126 minus 54, then 6 minus 4 2, अब 2 वाला कहाँ पे, यस सी में ही है। देन 12 minus 5 7 से 72 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। So students, today we are going to end our session with the lines. Students, I must say, so don't lose hope anywhere, okay? If you are finding any problem, कहीं पे भी आपको problem आता है, please ask me in the comment section box, okay? And keep practicing and keep sharing with your friends also, ठीक है। क्योंकि कई बार हमें friends से share करने पे ही हमारी आधी problem solve हो जाती है, ठीक है। So students, now we will see you in the next video. Till then, goodbye and best of luck for your exam, okay? So keep practicing and happy learning.